رہبری کی جا رہی ہے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ دوستو، ریاست کرناٹک میں ایس آئی آر کا عمل جاری ہے، محض چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ریاست کرناٹک کے اہم علماء کرام نے ایک بار پھر عوام الناس بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے، جلد سے جلد ایس آئی آر کے فارم بھرتی کریں، انیومریشن فارم جلد سے جلد بی ایل او کے حوالے کریں۔ بنگلور میں اس سلسلے میں ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ مولانا افتخار احمد قاسمی، مولانا مقصود عمران رشادی، مولانا ذوالفقار علی رضا نوری، مولانا شبیر احمد حسینی ندوی، مولانا عبدالقادر شاہ واجد اور حافظ سید عاصم عبداللہ و دیگر اہم علماء کرام اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین ذوالفقار احمد خان ٹیپو، جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے سیکریٹری عثمان شریف نے بھی میڈیا سے خطاب کیا اور ایس آئی آر کے سلسلے میں اہم گزارشات کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ سمجھ کر سب سے پہلے اپنا فارم داخل کریں اور پھر دوسروں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت صوبہ کرناٹک میں ایس آئی آر کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ سے یہ مہم شروع ہوئی ہے۔ اس کا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انومریشن فارم گھر گھر پہنچ کر بی ایل او کو دینا۔ اس کام میں بھی ہمارے یہاں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ بی ایل او گھر پہنچ رہے ہیں تو وہاں جو لوگ اس پتے پر نہیں ہیں ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ جس پتے پر آئی ڈی کارڈ، الیکشن کارڈ ہے، اس پتے پر پہنچ کر کے اس پتے کا جو بی ایل او ہے اس سے ملاقات کر کے اپنا فارم حاصل کرے۔ یہ فکر کہیں نہ کہیں اس میں کمزوری ہے۔ مسلمان ان کے آئی ڈی کارڈ میں جو پتہ ہے اس پتے پر آنے والے بی ایل او کے بارے میں معلوم کرے، اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقریباً مساجد میں بی ایل اوز کے بارے میں رہبری کی جا رہی ہے۔ ان بی ایل او کے پاس پہنچ کر کے اپنا انومریشن فارم اپنے گھر والوں کا حاصل کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں کمزوری ہے، جن لوگوں نے اب تک نہیں لیا، برائے مہربانی اللہ کے واسطے وہ اس کی فکر کرے۔ وہ چاہے ایک دن 2 دن آپ کو چھٹی لینی پڑے، آپ لیں اور وہاں پہنچیں، اپنا فارم حاصل کریں، یہاں کی کمزوری دور کریں۔ دوسری کمزوری جو پائی جا رہی ہے وہ فارم لے کر کے اس کو بھرتی کر کے جمع کرنے میں مسلمان سستی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اس کو اول وہلا میں پہلی فرصت میں اس کو بپر کر کے بھرتی کر کے بی ایل او کے پاس جمع کرنا ہے اور ایکنالجمنٹ اس سے حاصل کرنا ہے۔ اب اگر آپ حضرات کو بھرنے میں پریشانی آ رہی ہے تو آپ کے پاس پڑوس میں، گلی میں، محلے میں، مسجد کے ذمہ داروں میں پڑھے لکھے بچے بچیاں موجود ہیں اور وہ تعاون کرنے تیار ہیں، اور بہت ساری مساجد کے باہر جو ہے رضاکار محلے کے تنظیموں کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار اور محلے کی کمیٹیاں یہ سب مسجد کے باہر بیٹھ کر کے رہبری کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش، جن مساجد کی کمیٹیاں اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کی خدمات سر آنکھوں پر ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی ان کی خدمات کو، اور جو مساجد کے ذمہ داران اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں ان کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے بھی ایک بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ گزارش ہے کہ مساجد کے ذمہ داران 2-3 جمعہ ہمارے پاس اور مساجد کے ذمہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور یہ چاہ لیں گے کہ ہماری مسجد کے دائرے میں آنے والے جتنے مکانات ہیں ان تمام مکانات میں ایس آئی آر کے کام کو ہم کھڑے ہو کر کے مکمل کرائیں گے،
तो ये मसाजिद कमेटियां खड़े हो जाएंगे तो आपको मोहल्ले के रजाकार मिल जाएंगे, कॉलेज में डिग्री में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां मिल जाएंगे, उनको लेकर के आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम भी है, तंजीमों के जिम्मेदारान भी है और हज कमेटी और उसके अरकान भी मौजूद है, चेयरमैन साहब भी है। ये सब की कोशिश ये है कि जैसे जो मसाजिद पहले से शामिल है वो थोड़ा तेजी लाए और जो अब तक शामिल नहीं हुए वो पूरी तरह कमर बांध कर खड़े हो जाए और हर फर्द का, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, हर फर्द का ये SIR का काम मुकम्मल करने की कोशिश करे। अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। रहमानिर्रहीम। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में SIR हुआ और वहाँ का नतीजा हमारे सामने है। इस वक्त हमारी रियासत में SIR का सिलसिला शुरू हो चुका है, चल रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे जिम्मेदार अहबाब इस सिलसिले में फिक्रमंद हैं और खुतबा हजरात भी जुमे के दिन अपील कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे अहबाब ने फॉर्म हासिल कर लिया और ले जाकर इंतजार में हैं। अभी लंबा वक्त है 8 तारीख तक, इसलिए कि वक्त में तोसी हो गई है, इस वजह से और ज़रा हम देर से इसको जमा करें। मैं हमारे तमाम मसाजिद की कमेटियों से अपील करना चाहूँगा, अपने मोहल्ले में चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम अहबाब हो, सबके घर पहुंचकर उनके फॉर्म BLO तक पहुंचाने की फिक्र करें ताकि ये काम आसानी से हमारी रियासत में मुकम्मल हो सके। बहुत सारे अहबाब चूंकि उनका 2002 का डेटा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशान होकर वो फॉर्म जमा करने से कासिर हैं। कई एक अहबाब मुझसे भी राब्ता करके इस सिलसिले में वजाहत की। मैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ नौजवान इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर चुके हैं और इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप इनसे रुजू हों और फॉर्म फिलअप करके जमा कर दें, आसान मसला है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हज कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स अहबाब हैं वो और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार वो और इसी तरह मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदार और नौजवान इस काम को पूरी जद्दोजहद के साथ और अपना फरीजा समझकर इस काम को अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह बआसानी हम इस काम को नतीजे तक पहुंचाएंगे। यहाँ हजरात उलमा जो मुख्तलिफ मसालिक से भी हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से भी हैं और यहाँ हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सब मिलकर आपसे अपील करते हैं कि आप अहबाब अपना ये फरीजा समझकर सबसे पहले अपना फॉर्म दाखिल करें और फिर दूसरों की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी और हमारे घर वालों के तमाम फॉर्म को जमा कर दिया और इसमें मैं भी बिल्कुल हिस्सा लिया हूं और बाज़ाब्ता तौर पर जो भी हमको मिलना चाहिए वो मिल चुके हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में और दूसरे अहबाब में भी इसका शऊर पैदा फरमाए। एक और जुमा है और उसके बाद एक 7 तारीख का जुमा है, शायद कि उस मौके पर हम काम ना कर पाए। तो हमारे पास अभी 2 जुमा है। जैसे आपने अभी उलमा से सुना कि हमें ये फिक्र लेकर ये काम करना है। अभी हम हालात देख रहे हैं। मैं मस्जिद बिलाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2 तारीख को हमने कई नौजवानों को मस्जिद में बैठाया, उसके बाद कई दिनों तक तकरीबन 15 दिन तक तो काफ़ी लोग वहाँ पर रहे, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि नौजवान खाली बैठकर उठकर चले जाते। लगता है किसी को कोई फिक्र नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे लोग परेशान हाल है। 2002 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं, हमारे बाप का नाम नहीं, हमारे दादा का नाम नहीं, नाना का नाम, नानी का नाम नहीं। मुझे लगता है कि शायद कि आज से 20 या 25 साल के बाद फिर 2026 की लिस्ट में नाम पूछा जाएगा। 2002 में अगर हमारे बड़े हजरात, अगर तमाम मस्जिद के जिम्मेदारान अगर फिक्र लेकर काम कर लेते तो शायद आज हमें ये परेशानियां नहीं होती जो आज हमें परेशानियां देख रहे हैं। तो आज हमारे पास वक्त है। मैं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान जो हजरात काम कर रहे हैं, जो भी उलमा है, तंजीमात हैं, आज हमारे पास वक्त है। हम यानी किसी भी तरीके से अपने, चाहे ये मुसलमानों ही का काम नहीं है,
बल्कि जितने भी हमारे मोहल्ले में जितने भी हजरात रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम के पास जाएं, घरों में जाएं कि आपका फॉर्म मिल चुका है। नहीं मिला है तो उनको फॉर्म देने की कोशिश करें। अगर मिल गया है, फॉर्म नहीं दिए हैं, बीएलओ ने मुझसे कुछ शिकायत की है, कई बीएलओ ने, कि हजरत हम फॉर्म तो दे चुके हैं, पहले 30 तारीख से पहले हमें इतने फोन किया जा रहा था कि सोने तक नहीं दिया जा रहा था। जब 30 तारीख होने के बाद हमने फॉर्म दे दिया, अब देने के बाद 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि फॉर्म आपको मिल चुका है, 5 मिनट फॉर्म भरने में लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो फॉर्म आप यानी भर्ती करके बीएलओ के हवाले करें जितना जल्दी हो सके। अगर आज आपने ये अमल ना किया, काम ना किया, तो हमारा जो आने वाला इलेक्शन होगा, जब 2026 के आखिर में लिस्ट निकल कर आएगी, तो उसमें हमारा वोट नहीं होगा, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। हमारी यानी जो अमानत थी, हम अपनी अमानत में खयानत कर देंगे। वोट हमारी ताकत है, वोट हमारी अमानत है। अगर वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया तो समझ ले कि हमने खयानत की है और हमने अपने हक को मारा है। तो उस मौके पर परेशान होने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अभी हमारे पास यानी कई दिन बाकी है हमारे पास। हुकूमत ने, आपने ये भी सुना होगा कि डीके शिव कुमार साहब ने, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि अगर वोटिंग लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो जो सहूलतें रियासत में दी जा रही हैं वो उन हजरात को नहीं दी जाएंगी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अगर आप रियासत कर्नाटक में रहते हैं, आपको सहूलतें भी हासिल करना है, तो आप समझ लीजिए कि आपका आने वाली वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो मैं तमाम ही हजरात से करूंगा, एक तहरीक की तरह ये काम करें, तमाम मिलजुल के, तमाम हमारे नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, मसाजिद के जिम्मेदार, आइम्मा, खुतबा, इस पैगाम को जल्द से जल्द यानी इस आप मीडिया वाले पहुंचाएं, ताकि एक तहरीक की तरह हम काम लेकर इस काम को आगे बढ़े। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आप हजरात ने सुना, हमारे उलमाए किराम ने SIR के सिलसिले में बहुत ही अहम बातें हमारे सामने पेश की हैं। मैं मुसलमानान कर्नाटक और दीगर तमाम शहरियान कर्नाटक से गुजारिश करता हूँ कि इस मरहले में, इस मामले में संजीदगी के साथ, पूरे सीरियसनेस के साथ, कोताही किए बगैर इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। बिलखुसूस मुसलमानों से मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा दीनी, मिली, इस्लामी और दस्तूरी हक़ है। ये हमारे इस हक़ को हासिल करना चाहिए, इसमें ज़रा बराबर भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कोशिशें इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं सूबे कर्नाटक में, उलमाए किराम की तरफ से, NGOs की तरफ से, मसाजिद की कमेटी वालों की तरफ से, तमाम मसालिक के ज़िम्मेदार हजरात ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस काम को किया है। और जहाँ काम मस्जिद के ज़िम्मेदारों के और वहाँ के नौजवानों की सरपरस्ती और उलमा और अय्यम्मा की सरपरस्ती में हुआ है, वहाँ काम बहुत अच्छा हुआ है। इसका भी हमें एतराफ़ करना चाहिए। जैसे अभी मौलाना नूरी साहब ने फरमाया, जुल्फ़िकार नूरी साहब ने, कि खुद वो खड़े होकर काम कर रहे थे। तो जहाँ हुआ है वहाँ 60% 70% काम हो गया है। और जहाँ तक बात है कि फॉर्म को वापस नहीं किया जा रहा, ये बात भी बहुत सही है। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा जो हजरात ने इस फॉर्म को फिल कर लिया है, फॉर्म ले लिया है, उनसे हमारी गुजारिश है कि मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात से भी गुजारिश है कि आप घर घर पहुँचें और उनके हाथ से, उनके घरों से उस फॉर्म को वापस BLO तक पहुँचाने में अपना ताउन करें, उनकी मदद करें। इससे इंशाल्लाह काम जल्दी भी हो सकता है। वरना बड़ा नुकसान होगा, ये नुकसान होगा कि ये अगर हो गया और हमारा नाम नहीं आया, लिस्ट में नहीं आया, तो आगे चलकर बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं, हमारी शहरियत भी ख़त्म हो सकती है। अगर हमने फॉर्म भर्ती करने में गलती की तो फिर इसका भी ख़तरा और अंदेशा है कि आगे चलकर हमारा नाम लिस्ट में अगर डिस्क्रिपेंसी के खाने में अगर आ जाता है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के खाने में आ जाता है, तो फिर हमें बड़े मसाइल पेश होते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर पेश करना पड़ता है, फिर आगे चलकर मसला वहाँ हल नहीं होता तो फिर कोर्ट में हमारी पेशी हो सकती है। उसके लिए हमें अपने एडवोकेट्स को रखना पड़ेगा और उसके लिए जान भी, माल भी, वक्त भी, दिल भी, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये वक्त आने से पहले, ये मरहला और ये स्टेज आने से पहले कोशिश ये की जाए कि अभी अल्लाह ने वक्त दिया है, 8 तारीख तक का वक्त है, तो इसमें कोशिश की जाए कि 100% हमारे एनुमरेशन फॉर्म फिल किए जाएं और उनको
BLO तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए। माशाल्लाह कुछ हमारे नौजवानों ने ऐसा डेटा बनाया है, हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऐसा डेटा है कि हर गली में जहां मुसलमान रहता है उसके नाम के साथ, उस गली के नाम के साथ, डोर नंबर के साथ वो डेटा हमारे पास मौजूद है। वो आप हासिल भी कर सकते हैं। शिवाजी नगर का, पुलकेशी नगर का और सर्वज्ञ नगर का, हेब्बाल का, बल्कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात इसको लेकर घरों तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ और उन तक हमारी बात पहुंचा भी सकते हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इस अमल में हमें पूरी कामयाबी अता फरमाए, पूरी मदद अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SIR के ताल्लुक से आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है जिसमें मुफ्ती इफ्तिखार साहब और मौलाना मकसूद इमरान साहब ने तफसीली गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से अक्सर नौजवान BLO का साथ दे रहे हैं, घरे घर पहुंचकर उनको उनका फॉर्म दिला रहे हैं, जिसमें हमारे अपने एरिया में मैंने भी 3 दिन मुसलसल BLO को लेकर घरे घर पहुंचकर उनके फॉर्म दिलाए हैं। मगर परेशानी तो ये है कि फॉर्म भर्ती करना नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत 2002 का तलब कर रही है और 2002 का अक्सर लोगों के पास मौजूद नहीं है। जो लोग 60 साल 70 साल से जिस मकान में हैं, 2002 से पहले का वोटर ID उनके पास मौजूद है, उसके बाद का एक वोटर ID मौजूद है, 2002 का नहीं है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। और फिर बहुत तलाश करने के बाद मेरा खुद का 2002 का ID कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जिस जगह मैं था वहां भी 1 महीने से हम तलाश कर रहे हैं मगर वहां भी नाम नहीं मिला। और उसके अलावा ब्रिगेड रोड जहां मेरा आबाई मकान है, 50-60 साल से हमारे भाइयां वहां मौजूद हैं, उनका भी मौजूद नहीं है। अब गुजारिश ये है कि जो हजरात BLO में काम कर रहे हैं या इस तंजीम से लगे हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो 2002 का तलाश करें। मगर तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। कम से कम 70 मेरे मोतफिदीन ने तलाश किया, अब तक नहीं मिला। उम्मीद है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो 2002 का मिल जाए। मगर हमारी गुजारिश ये है कि मसाजिद के कमेटी वालों से, नौजवानों से, तालीम याफ्ता लोगों से कि इस ताल्लुक से आप अपने अपने महल्ले में कोशिश करें, जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनका साथ दें, उनका फॉर्म भर्ती करें, उनको BLO से मिलाएं। और मैं 2002 का ना होने की वजह से जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे एक दूसरे कॉलम में फिलअप करके उनके हवाले कर दिया और वहां से हमको सनद भी मिल गई है। मैं गुजारिश करता हूं तमाम उन लोगों से जो तालीम याफ्ता हैं, जो इस लाइन में मेहनत और मशक्कत करने के आदी हैं, अल्लाह ताला उनसे खिदमत ले ले और वो भी अपनी कौम की खिदमत करें और जज़ाए खैर हासिल करें। जमहूरी मुल्क में शहरियत और शहरियत के ज़रिए से जो ताकत है वो बहुत बड़ी नेमत है। अगर शहरियत हमारी छिन गई, हमारी ताकत तोड़ गई। अगर हमारे पास ताकत है तो हमारे आका का फरमान है, उनसुर अखा का ज़ालिमन और मजलूमन। अगर ताकत है तो जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो इसलिए जमहूरी मुल्क के अंदर शहरियत बहुत बड़ी बात है। जो SIR का जो मसला इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, इस वक्त कर्नाटक में जो SIR का काम हो रहा है, वो हमारी शहरियत की हिफाजत के लिए, शहरियत को तरतीब देने के लिए है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों ने कर्नाटक से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभी हमारे उलमा इकराम ने जो आपके सामने बातें रखी हैं, उसका खुलासा ये है कि एन्यूमरेशन फॉर्म को लेना BLO के पास से और उसे अच्छी तरह से इंदराज करना, उसे फिल करना
اگر آپ کو فل کرنا آتا ہے تو آپ فل کیجئے، ورنہ کسی دوسرے کی مدد لے کر اس کو فل کروائیے۔ تیسرا کام، اسے واپس لوٹانا، اس میں تاخیر نہ کریں، جلد سے جلد واپس لوٹانے کی کوشش کریں۔ چوتھا کام یہ، اس کے پاس اکنالجمنٹ لینا، یعنی 4 کام کرنا: BLO سے فارم کو لینا، اس کا اچھی طرح سے اندراج کروانا، اسے واپس لوٹانا، پھر اس کا اکنالجمنٹ لینا۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے صوبے کرناٹک میں ہیلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر الگ الگ علاقوں میں مختلف تنظیموں کے ساتھ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، NGOs کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مساجد کے ذمہ دار بھی کام کر رہے ہیں، مسجد کی کمیٹیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ اس وقت سب سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ چونکہ آخری مرحلے کی بات ہے، 8 اگست تک ہمارے پاس ٹائم ہے، اب اس وقت جو کمزوری کی باتیں ہمارے مختلف علماء کرام نے بتائی ہے کہ ہمارے لوگوں میں سستی و کاہلی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے فارم لے لیا، فارم واپس نہیں کیا ہے، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، چونکہ ہماری شہریت کا مسئلہ ہے، ہماری طاقت کا مسئلہ ہے، اس لیے اس میں ذرا برابر بھی تساہل و کاہلی نہیں ہونی چاہیے۔ فارم کو واپس لے کر اس کا اکنالجمنٹ، یعنی اسے لوٹانے کی بات، اس کا اکنالجمنٹ لینا، اس کے لیے NGO سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں ذرا بڑھ چڑھ کر آپ مدد کریں، مسجد کی کمیٹی والے ذرا میدان میں آئے، اور اسی طرح NGO سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں۔ اس کے لیے BLA کا سہارا لے سکتے ہیں آپ، BLO تک کام کو پہنچانے کے لیے ہمارے جو BLA ہیں، پارٹی کے بوتھ لیول ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ساری جگہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے بھی ہیلپ ڈیسک بنایا ہوا ہے الگ الگ علاقوں میں، ان کے ذریعے سے آپ اپنے کام کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بات مولانا عبد القادر صاحب کی طرف سے آئی کہ 2002 میں اگر کسی کا نام نہیں ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس اگر 2025 کی ووٹر لسٹ میں ان کا نام آ گیا ہے تو آپ اسی کالم کو اندراج کر دیں اور اسی کالم کو آپ پہنچا دیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آگے کوئی بات آئی تو ہم کو پھر موقع اور مہلت مل رہی ہے، یعنی وقفہ ملے گا انشاءاللہ، اس سلسلے میں ہم اور مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ درخواست ہے تمام علماء کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین بھی اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء، اکابر علماء ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، اور بہت سارے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، سب کی طرف سے درخواست ہے کہ اس کام میں ہرگز غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کل جمعہ کا دن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ذرا دن رات کی محنت کر کے کوشش کر کے اس کام کو انجام تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے، بارآور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں پہلے تو ہمارے جتنے بھی علماء کرام آ کے SIR کے بارے میں بہت زمانے سے پورے فکر کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نتیجہ ہمیں جو پورے علماء کرام اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو رزلٹ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ رزلٹ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے۔ پورے علاقے کے جو جائزہ لیا گیا ہے اس کے اندر جو 90% 100% تک آنا تھا وہ بھی نہیں ریچ ہو کے، صرف 60% تک اکثر مسلم ایریاز میں ریچ ہو کے ہے، تھوڑے ایریاز میں 90% ریچ ہو کے ہے، جہاں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جہاں مسجد کی کمیٹیز ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، وہاں الحمدللہ 90% تک ریچ ہو گئے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے سے تمام کرناٹک اسٹیٹ کے جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ اس سے پہلے بھی انومریشن کے تعلق سے آپ لوگوں نے اچھی خدمت کی، اور بہت سارے نوجوان الحمدللہ دن رات کام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی اس چینل کے، اس میڈیا کے ذریعے سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ابھی ہمارے پاس صرف 8 اگست کو جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں مہربانی فرما کر گلی کوچے میں ہر گھر کو جائیں، دیکھیں، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، آپ کے ایریاز کے جتنے بھی آپ کے مساجد کو جتنے گھریں ملتے ہیں وہ گھریں کے اگر آپ فکر نہیں کریں گے تو آئندہ بہت اس کی تکلیف اٹھانا پڑے گا، بہت سارے حالات بدلنے والے ہیں اس لیے یہ موقع اچھا ہے، ہماری حکومت بھی اچھی ہے الحمدللہ۔ تو میں تمام جو ہمارے تمام علماء اکرام دن رات اس کی فکر کر رہے ہیں، میں ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے مساجد والوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر آپ ابھی 15 دن ہے باقی، اس کے اندر آپ اگر فکر کریں گے تو 100% رزلٹ آئے گا۔ اتنا کہتے ہوئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قادریہ مسجد میں یہ کیے، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام علماء اکرام جو یہاں پہ آئے، جو بڑے ویری شارٹ نوٹس میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोग जानते हैं हमारे सूबे कर्नाटक में जो SIR की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट उसका जो फॉर्म्स फिल करने का है अगस्त 8 है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कई मसाजिदों से और कई ऑर्गेनाइजेशंस एक कोऑर्डिनेशन की तरह एक टीम बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह इस SIR के प्रोसेस को अमल में लेकर आ रहे हैं। और कई जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो BLO जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, उनके साथ मिलकर हाउस टू हाउस जाकर एनरोलमेंट का जो एन्यूमरेशन का ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसमें ये गौर करके हैं, ये नोटिस कर हैं कि बहुत सारे लोग इसमें या तो घर शिफ्ट हो गए या दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। आप लोगों को जानना चाहिए, चाहे मर्द हजरात हो या खवातीन हो, ये बहुत जरूरी है, ये आपके सिटीजनशिप का मसला है। तो हम तमाम हजरात से अपील करते हैं और खवातीन से अपील करते हैं कि आप इसमें दिलचस्पी दिखाएं और अपने लोकल BLO को कांटेक्ट करें या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल मस्जिद है जहां पे कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट करें और आपका एन्यूमरेशन सक्सेसफुली कराएं। और दूसरा जो है, जो लोग जो शिफ्ट हो गए हैं उनका भी अगर आप लोग अपने लोकल मसाजिद के जो कैंप्स हैं, जो आपका BLA है और BLO है, आप उनको कांटेक्ट करके आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल एन्यूमरेशन होगा। शुक्रिया।